Hello everyone, today in this video of chapter number 2, we are going to study about kingdom Monera. So, what exactly the kingdom Monera is? Kingdom Monera actually contains a unicellular organism, and those unicellular organism will be of what? Prokaryotic type. Okay, so you know what is the main difference between prokaryotic and eukaryotic organism. The main difference is about the nuclear membrane. Fine, whereas eukaryotic have a well-defined nucleus with a nuclear membrane, nuclear pore, when prokaryotic do not have a nucleus and a nuclear membrane. Now, kingdom Monera, as I said you, it contains a unicellular organism. तो कौन से ऐसे unicellular organism kingdom Monera के अंदर आएंगे? तो it contains only and only bacteria. ओके अब ये जो बैक्टीरिया है वो अबंडेंटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट. एवरीवेयर मतलब कहाँ प्रेजेंट होंगे? इट विल बी प्रेजेंट इन अ सॉइल, इन अ हॉट स्प्रिंग्स, इन अ डेजर्ट, इन अ स्नो, डीप ओशंस, मतलब हर जगह पे तुम्हें ये बैक्टीरिया मिल सकते हैं. ओके अब ये जो बैक्टीरिया है ऐसे नहीं कि ये सारी जगह पे ही मिलेंगे. यू कैन ऑल्सो गेट बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट्स, राइट. मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है या तो कोई ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे या तो फिर दे विल लिव इनसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड दे विल एक्ट लाइक व्हाट? पैरासाइट्स. फाइन. नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. सो दिस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इज बेस्ड ऑन व्हाट? शेप. कि कौन से शेप के बैक्टीरिया है उसके हिसाब से हमने बैक्टीरिया को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया. तो यू कैन सी कि फर्स्ट इज व्हाट? स्पेरिकल. There is a spherical shape, so this bacteria is considered as what? Spherical. And its another name is what? Coccus. This is rod shape. Its another name is what? Bacillus. It's a spiral shape, so its name is what? Spirillum. And it is a comma shape, so its name is what? Vibrium. Okay. अब ये जितना तुम्हें स्ट्रक्चर सिंपल दिख रहा है उतना ही उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर जितना सिंपल है उतना ही बिहेवियर भी सिंपल होगा. नो, स्ट्रक्चर जितना सिंपल है उतना ही उनका बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स. नाउ इट इज सेड बिकॉज कि अगर तुम बाकी के ऑर्गेनिज्म से अगर ये बैक्टीरियाज को कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि ये जो है इट एक्चुअली शोज अ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मतलब ऑर्गेनिजम्स में ही तुम्हें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज दिखेंगे, वेरिएशंस दिखेंगे. कौन से वेरिएशंस? तो देयर मे बी either a autotrophic bacteria or it can be a heterotrophic bacteria. नॉर्मली इफ वी सी तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म को हम कंसिडर करें तो सबके सब कैसे होते हैं? सेम. बट यहाँ पे बैक्टीरिया में यू कैन सी कि या तो इट कैन बी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और इट कैन बी हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मतलब those organisms which can prepare their own food from inorganic substances, and whereas heterotrophic means they cannot prepare their own food, so they will be dependent on other organisms. अभी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज अवेलेबल होते हैं. एक होते हैं फोटोसिंथेटिक वाले एंड दूसरे होते हैं केमोसिंथेटिक वाले. अभी फोटोसिंथेटिक वाले मतलब कि दे यूज द सनलाइट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फूड, वेरस केमोसिंथेटिक मतलब उनके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी इट विल बी यूज्ड बाय दिस केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. Got it? अभी ये heterotrophic bacteria, as I told you, they cannot prepare their own food, so they will be either dependent on the other organisms or else they will be dependent on a dead organic matter of the food. Got it? Now let us see the domains of kingdom Monera. Now in the last video we already saw कि there are two domains of kingdom Monera. One is Archaeabacteria and one is Eubacteria. Now this kingdom Monera can also be differentiated into three different kinds of bacteria depending on what their cell wall, whether they have a presence of cell wall or they do not have a cell wall. So if there is a presence of cell wall, kingdom Monera is divided into two types. One is what? Archaeabacteria and Eubacteria. And if it do not contain cell wall, then the bacteria will be of what? Mycoplasm. ठीक है. अब ये तीनों को हमें डेप्थ में देखना है. So let us first begin with Archaeabacteria. So what exactly the Archaeabacteria is? अभी ये जो आर्किया बैक्टीरिया वाले जो भी बैक्टीरियाज रहेंगे दोज आर वेरी स्पेशल. अभी इनको स्पेशल क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज दे कैन लीव इन अ मोस्ट हार्श हैबिटेट. अभी हार्श मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते लेकिन ये बैक्टीरियाज रहते हैं. ठीक है. अब ऐसे कौन से कंडीशंस हैं? तो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज. अगर बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज में रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स. ठीक है. अब ये हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं तो ऐसे
बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब ऐसे थर्मो एसिडोफाइल्स वाले कंडीशन में ये बैक्टीरियाज रह सकते हैं. एंड मार्शी एरियाज मतलब कि द बैक्टीरियाज आर नोन एज व्हाट, मिथेनोजेंस. ठीक है. सो दिस आर दी 3 एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पे तुम्हें ये बैक्टीरियाज मिल सकते हैं. कौन से, आर्किया बैक्टीरिया वाले. अब आर्किया बैक्टीरिया को अगर तुम दूसरे बैक्टीरिया के साथ अगर कंपेयर करोगे तो देयर इज अ मेन डिफरेंस कि उनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है. अभी सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो ये जो आर्किया बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. ओके, सो इट इज नॉट मेड अप ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन. बाकी जो भी बैक्टीरियाज हैं उनका जो सेल वॉल है किससे बनेगा, पेप्टिडोग्लाइकन से. आर्किया बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, एस लेयर. एस लेयर इज नथिंग बट प्रोटीन क्रिस्टलाइन लेयर, मतलब प्रोटीन के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं उनके सेल वॉल पे, एंड एक थीन लेयर होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस लेयर ये जो आर्किया बैक्टीरिया है वो आराम से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव हो सकते हैं. ओके, अब बात आती है मिथेनोजेंस की. ओके, सो देखो हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स वाले जो होंगे उनके पास ये पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर नहीं होता है, बट कौन सा लेयर होगा, एस लेयर का. बट जब बात आती है मिथेनोजेंस की, तो ये मिथेनोजेंस वाले जो बैक्टीरिया है उनके पास सूडो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है. कौन सा लेयर होगा, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है. एंड ये जो मिथेनोजेंस जो है वो तुम्हें मोस्टली कहाँ मिलेंगे, इन अ रूमिनेंट एनिमल्स के गट में. गट मतलब इंटेस्टाइन. ठीक है. अभी रूमिनेंट एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो खाना खाने के टाइम पे खाना मुंह में तो ले लेंगे, दे विल डायरेक्टली पास इट इनटू द स्टमक, एंड व्हेन दे आर रेस्टिंग वो लोग फिर से स्टमक से वो खाना दे विल ब्रिंग इट टू द माउथ, दे विल च्यू इट, एंड देन दे विल अगेन पास इट टू द स्टमक फॉर व्हाट, डाइजेशन. ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स. अब ऐसे एनिमल्स कौन होते हैं, काव होते हैं, बफेलोज होते हैं. ठीक है. अब ये काव एंड बफेलो जब भी इजेशन करते हैं, इजेशन मतलब जब भी उनका फिसेस बाहर निकालते हैं, मतलब उनका जो डंग जो होता है एनिमल्स का, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, और यू कैन से फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, बायोगैस. जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट कि मिथेनोजेंस वाले जो बैक्टीरिया है वो उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो गट में से डंग में भी पास ऑन होते हैं, तो उसी वजह से हम इनका जो डंग है वी कैन यूज इट एज व्हाट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. गॉट इट. तो ये फायदे वाला है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, यू बैक्टीरिया. अभी यू बैक्टीरिया कैसे है, तो ये भी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया है. यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ट्रू बैक्टीरिया. इनका मेन कैरेक्टराइजेशन क्या है, तो इनका जो सेल वॉल है वो रिजिड है, मतलब एकदम स्ट्रांग रहेगा, राइट, हार्ड रहेगा. एंड अगर ये बैक्टीरिया मूव हो सकते हैं, राइट, मतलब इफ दे कैन बी मूविंग, तो मूविंग वाले को क्या बोलते हैं, मोटाइल. एंड इफ दे आर नॉट मूविंग तो दे विल बी नोन एज व्हाट, नॉन मोटाइल. तो जो यू बैक्टीरिया है दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो मोटाइल या तो नॉन मोटाइल. अगर मोटाइल है तो उनके पास क्या रहेगा, ये फ्लैजिलम, तो ये फ्लैजिलम के हेल्प से दे कैन मूव. ओके. अब ये यू बैक्टीरिया जो है वो भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं. एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक में जो अपना खाना खुद बनाएंगे, हेटेरोट्रॉपिक में जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. ऑटोट्रॉपिक वाले में भी 2 टाइप्स हमें देखने हैं, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक. सो लेट अस सी. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद व्हाट, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब कि वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. अब जब हम प्लांट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हाउ प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, दे हैव अ पिगमेंट, right, and which was that pigment, the chlorophyll pigment, right. So chlorophyll pigment के हेल्प से ही ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. द सेम वे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, उसमें भी द स्पेशली कौन से बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन अलगे. अगर इनको भी कंपेयर करेंगे प्लांट्स के साथ तो दे विल ऑल्सो हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ क्लोरोफिल एज दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स. अब ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, और यू कैन से जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल का रहेगा, या तो कोलोनियल मतलब ग्रुप बना के रहने वाले होंगे, या तो फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक. ठीक है. अब ये मिलेंगे कहाँ पे, आइदर यू कैन फाइंड इट इन अ फ्रेश वाटर, मराइन, और यू कैन फाइंड इट इन वॉट, टेरेस्ट्रियल algae. ओके. अब देखो कि ये जो कॉलोनीज में जो बैक्टीरियाज है, या फिर यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, या फिर जो फिलामेंटस के फॉर्म में जो बैक्टीरिया है, उन सब के ए सेल के सराउंडिंग में व्हाट यू कैन सी के देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जिलेटिनियस शीट.
gelatinous sheet and mucilaginous sheet is one and the same. So you can see that they have a gelatinous sheet surrounding that cell. Okay, now you can see कि ये वाला जो diagram है यहाँ पे you can see कि it is a filamentous structure, but it is an example of what? Nostoc, right? So nostoc जो है it comes under what? Cyanobacteria. nostoc है, एनाबिना है, they comes under what? Cyanobacteria. अभी इनका स्पेशलिटी क्या है? तो सी, ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन एक्चुअली फिक्स व्हाट? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्यों रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन इट. यू कैन सी कि बाकी के सारे सेल्स जो है वो सिमिलर है, लेकिन ये वाला सेल और ये वाला सेल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ये जो सेल है उसका नाम क्या है? हेटेरोसिस्ट. एंड just because of this heterocyst which is a special kind of cell, वो किसके लिए हेल्प करेगा? टू फिक्स व्हाट? नाइट्रोजन. वो भी कौन सा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. गॉट इट? एंड प्लस ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो वाटर बॉडीज में अगर पोल्यूटेड है they form what? blooms, right? blooms in what? polluted water bodies. जो भी water bodies अगर polluted होता है and अगर तुम्हें उसके ऊपर algae दिखते हैं तो those algae are which algae? these are the cyanobacterias. so याद रखना कि तुम्हें ये वाला और ये वाले दोनों डायग्राम्स को तुम्हें अपने नोटबुक में करना है, प्लस तुम्हें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वाला भी डायग्राम करना है. Now let us see the next, that is what? chemosynthetic bacteria. अभी chemosynthetic bacteria जो है वो क्या करते हैं? they prepare their own food, but not with the help of sunlight, with the help of what? Oxidizing a inorganic substance जैसे कि nitrates जिसे हम NO3 करके लिखते हैं, nitrites that is NO2 and ammonia that is what? NH3, right? So जब ये inorganic substance का oxidation होगा तो it will prepare what? energy, and ये जो energy जो release होती है it is in the form of what? ATP. Got it? एंड प्लस ये बैक्टीरिया और भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स. कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करेगा? जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, राइट? ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तुम्हें मिलेंगे कहाँ पे? तो यू विल फाइंड इट इन अ डीप ओशंस में, सीज में, जहाँ पे बहुत डार्क होता है. गॉट इट? नाउ let us see the next bacteria, that is what? heterotrophic bacteria. So we are done with autotrophic, now we'll see about what? heterotrophic. So heterotrophic जो है they are the mostly decomposers होते हैं, right? जो dead organisms के ऊपर रहेंगे. yeah, they are dependent on other organisms but mostly they are what? decomposers. ये human affairs में भी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब ह्यूमन के लिए भी बहुत यूजफुल होता है. वाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग व्हाट? कर्ड फ्रॉम द मिल्क. इट विल ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग सम एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स, right? And it will also help plants, that is leguminous plants. Why? Because leguminous roots में जब ये heterotrophic bacteria insert हो जाते हैं तो they help in fixing what? nitrogen. Got it? Now ये हेल्पफुल के साथ, बेनिफिशियल के साथ, ये पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं. तो ये किन किन को डिजीज कॉज कर सकते हैं? ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को या फिर पैट्स को. अभी जो मेन डिजीज है, जो वेल नोन डिजीज है, जो अलग अलग बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, जो हमने बार बार सुना होगा, वो कौन से हैं? कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर मतलब लेमन के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देखे होंगे, दैट इज अ डिजीज कॉज बाय होम? बैक्टीरियाज. गॉट इट? आप देखते हैं अबाउट द नेक्स्ट. एंड नेक्स्ट हमें क्या देखना है? अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो सकते हैं, एक तो असेक्सुअल एंड एक तो सेक्सुअल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइदर इट विल कैरी आउट बाय फिजन और दे विल कैरी आउट बाय स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन मतलब कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे ये लोग क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस व्हाट? स्पोर्स. एंड वही स्पोर्स से फिर नए बैक्टीरिया फॉर्म होंगे. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? दे विल ट्रांसफर अ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर. सो यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो फिजन है, फिजन में क्या होगा? ये एक बैक्टीरिया है, उनका ये जो डीएनए जो है वो क्या हो गया? रेप्लिकेट हुआ, मतलब कि डबल अमाउंट में हुआ. एंड फिर ये जो सेल है वो क्या हो गया? धीरे धीरे डिवाइड हो गया. तो ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाए, इसे हम क्या बोलते हैं? फिजन प्रोसेस. ठीक है? एंड ये जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, तो ये फर्स्ट बैक्टीरियम है, ये दूसरा बैक्टीरियम है, तो उनका ये जो डीएनए प्लाज्मिड जो है वो क्या हो रहा है? देखो, यू कैन सी हियर कि धीरे धीरे ये वाले बैक्टीरिया में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, राइट? एंड ये जो प्रोसेस है एक्चुअली इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? कॉन्जुगेशन. एंड ये जो ट्यूब जो बना है दोनों के बीच में उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब. गॉट इट? ये डायग्राम तुम्हें नहीं बनाने हैं दोनों,
इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि फिजन एंड कॉन्जुगेशन कैसे होता है. फाइन. नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ द किंगडम मोनेरा. कौन सा है? माइकोप्लाज्मा. एंड मैंने तुम्हें बताया इनका मेन डिफरेंस क्या है बाकी के बैक्टीरिया से, कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है. ठीक है, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया दोनों के पास सेल वॉल होता है, बट उनके सेल वॉल में डिफरेंस होता है. इसके पास सेल वॉल ही नहीं है. ठीक है. सो देखो, ये जो सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है, ये बैक्टीरिया से भी बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? पीपीएलओ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ? पीपीएलओ इज प्लूरो pneumonia. So P is for pleuro, P is for pneumonia, L is for like, and O is for organism. So this is the full form of PPLO. Got it? So mycoplasm can also be known as what? PPLO. इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन फिर भी ये they can survive without what? ऑक्सीजन. मतलब ये एनारोबिक की तरह भी रह सकते हैं. एंड ये मोस्टली कहाँ डिजीज कॉज करते हैं? इन अ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा, जहाँ पे हमने देखा कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? बैक्टीरिया, जो तुम्हें एवरीवेयर मिलेंगे. हमने उसके टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखे, जो 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखे बेस्ड ऑन व्हाट देयर शेप. प्लस हमने उसकी जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी देखा इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक में भी फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक है. उसके डोमेन्स ऑफ बैक्टीरिया देखा, इट इज आर्किया एंड यू बैक्टीरिया. ये दोनों के पास सेल वॉल होता है, एंड ये जो माइकोप्लाज्मा है उसके पास सेल वॉल नहीं होता है. उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी देखा, वो भी 2 टाइप का है, या तो असेक्सुअल हो सकता है या तो सेक्सुअल. गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड अबाउट द किंगडम मोनेरा. In a next video, we'll come up with the next topic, means next kingdom, that is Protista. Till that, thank you.